السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولا ونیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ موجودہ دور میں دنیا کے مختلف ممالک ایک تارکین وطن کا مسئلہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور موجودہ دور کے تارکین وطن اپنے ملک کے لیے بھی اور جہاں پر وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جہاں جہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا، مصائب کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو تو وہ یقیناً مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بھی مارتے ہیں، اپنے آپ کو دریاؤں سمندروں کے رحم و کرم پہ بھی چھوڑتے ہیں۔ کوئی طوفانوں کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی جیل کی سلاخوں تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو کوئی اپنی منزل پہ پہنچ کے بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو موجودہ تارکین وطن کے لیے بالخصوص ڈیولپڈ کنٹری کے اندر اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں ہانگ کانگ میں ہیں، ہمارے ہاں ایک اچھی خاصی تعداد تارکین وطن کی ہے جو اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر ایک اچھے خواب اور ایک اچھی امید اور ایک اچھے مستقبل کے سہارے پر یہاں پر پہنچے۔ جیسے یہاں پہ پہنچے، دنیا کے مختلف ملکوں میں اسی طرح پہنچے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً اگر میں یہ کہوں 99% ان لوگوں کی ہے جو تیسری دنیا کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، غلط نہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ ہجرت کر کے وہ آتے ہیں، واپسی کے راستے اپنے لیے بند کر کے آتے ہیں، اور بعض حالات کے اندر واپسی جانے کے اختیار بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو کچھ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، کچھ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ قلیل تھوڑے ہوتے ہیں کہ جن کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ آج محرم الحرام کے آخری ایام ہیں، ستمبر کا مہینہ ہے، اور 1441 ہجری کا یہ پہلا مہینہ، تو خود اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، اور اسلامی سال خود ہجرت کی طرف منسوب ہے۔ پھر ستمبر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی بعد میں، یعنی یہ 622 عیسوی تھا ستمبر کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور یہ ستمبر کا آخری
महीना चल रहा है और को इंसिडेंट कहें या चांस कहें कि मुहर्रम और सितंबर इकट्ठे हो गए। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमरी एतबार से सफ़र के महीने में मक्का को छोड़ा, रबीउल अव्वल में आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हिजरत के मौके पर, तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सऊबतें बर्दाश्त की और ये भी फरमाया कि अंबिया की हस्तियाँ इंसानों में सबसे ज़्यादा मसाइल और सबसे ज़्यादा मुसीबतों को झेलने वाली होती हैं, और उन अंबिया में सबसे ज़्यादा मसाइल और मुसीबतें मैंने देखी हैं। हुजूर के सफ़र ताइफ को देखें, हुजूर पे लगने वाले इल्ज़ामात को सुनें और पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन किन नामों से किस किस तरह पुकारा और बुलाया जाता था। सीरत की किताबें आप उठाएं, उसको देखें। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्का से मदीना की तरफ सफ़र हिजरत को देखें, और सफ़र हिजरत सहाबा का भी हुआ और बेशतर अंबियाए किराम ने हिजरत फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने भी हिजरत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पर मुश्किल वक्त आया तो आपने अपने असहाब को मक्का छोड़कर हबशा की तरफ जाने का हुक्म दिया, और हबशा में आपके असहाब जब पहुंचते हैं और हबशा की तरफ जब आप रवाना करते हैं तो ये फरमाते हैं कि हबशा का बादशाह अदल पसंद है, इंसाफ पसंद है, खैर खाही करने वाला है, और उसकी रियाया उससे खुश है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब के लिए मक्का जैसी मुक़द्दस जगह को छोड़कर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पे अभी इस्लाम नहीं पहुँचा था, बादशाह मुसलमान नहीं था, अवाम मुसलमान नहीं थे। एक इंसानी रिश्ता और इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर, हालांकि कल्चर मुख्तलिफ, ज़बान मुख्तलिफ, मज़हब मुख्तलिफ, हत्ता के बर्रे आज़म मुख्तलिफ। हबशा बर्रे आज़म अफ्रीका में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में जो एशिया का हिस्सा, दरमियान में समंदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पे भेजा ताकि पुरअमन तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकें, अपनी भी हिफाजत कर सकें, अपनी दीन की भी हिफाजत कर सकें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस इब्तिदाई मुश्किल दौर के अंदर हुक्म था, कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखो, यानी मुसीबतें झील लो, मसाइब बर्दाश्त कर लो, गालियां सुन लो, ओझरी आप पर रखी गई, आपके सहाबा को गर्म रेत पे लिटाया गया, आप पर कूड़ा भी फेंका गया, आपके असहाब को सताया भी गया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिएक्शन में न गाली दी न गोली। उस दौर में गोली पत्थर होता, उस दौर में गोली खुफिया अंदाज से किसी को मारना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया, अल्लाह ने मना किया, कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ को रोक के रखो। तो गोया हिजरत से सबसे पहला सबक ये मिलता है, हबशा की हिजरत हो या बाद में मदीना की, कि सबसे पहला सबक ये मिलता है कि इंसान अगर अपने वतन को, अपने इलाके को छोड़कर जब कहीं जाता है तो सबसे पहला और बुनियादी रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, और इंसानी खसाइस और ह्यूमन वैल्यूज़ जिसको कहा जाता है, बैनुल अक़वामी वो वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़ कि जिसको दुनिया का हर इंसान तस्लीम करता है, वो है इंसानियत की बुनियाद पर खैर खाही, और इंसानियत की बुनियाद पर उसके साथ हमदर्दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुनियाद पर साहबा किराम को जाने की इजाज़त दी, और साहबा किराम ने यह साबित किया कि हम यहाँ पर माल बटोरने नहीं आए,
फ़ायदा उठाने ही, माली तौर पर फ़ायदा उठाने नहीं आए, या किसी कौम पर बोझ बनने के लिए नहीं आए ना, बल्कि इसलिए आए हैं कि अल्लाह के पैगाम से अल्लाह की मखलूक को रोशनास भी कराएं और आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत भी बजा लाएं। ये सबसे पहला सबक था जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के ज़रिए असहाब को दिया। यानी आप ये देखिए कि हबशा के लोग न रंग में, न कल्चर में, न मजहब में, न इलाके में मुमासलत और मुशाबहत रखते थे, लेकिन हुजूर उनकी तारीफ फरमा रहे। चुनांचे सबसे पहला ये सबक मिलता है। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बड़े पैमाने पर हिजरत का हुक्म दिया वो मदीना की तरफ था। हबशा की तरफ तो चंद लोग थे, 2 हिजरत हबशा की तरफ हुई, एक में 11 और दूसरे में 100 से भी कम तादाद, 80-90 के दरमियान की तादाद थी। लेकिन मदीना की तरफ तो ये हुक्म था कि जितने भी कलमा गो हो सब मदीना का रुख करो। अब मदीना एक छोटा सा शहर है, एक कस्बा है उस दौर में जो यसरब कहलाता है, और उस दौर के इस कस्बे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जमात को लेके पहुंच गए हैं। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शहर में पहुंचने के बाद किस अंदाज से उस आबादी को कायल किया कि हम आप पर बोझ नहीं हैं, बल्कि हम आपकी ज़रूरत हैं और आपके लिए मुहाफिज बनकर आए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र हिजरत, ये देखिए आज के जो अपने वतन और इलाके को छोड़ के दूसरी जगह पहुंचने वाले लोग हैं, जब जाएंगे छुप छुपा के जाएंगे और घर से निकलेंगे तो हर एक को पता होगा, लोग मुबारकबादें भी दे रहे होंगे, कोई हार भी पहना रहे होंगे, कोई दुआ भी कर रहा होगा और हर एक के सामने वो जा रहे होंगे कि जी फला मुल्क की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन जब किसी और जगह गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे होंगे तो छुप छुपा के जाएंगे, छुप छुपा के पहुँचेंगे। यहाँ मामला उलट है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब बेशतर छुप के मक्का से मदीना की तरफ रुख करते हैं और मदीना में बबांगे दुहुल अपना कदम रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रात की तारीकी में आपने अपने घर को छोड़ा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ़ ले गए और उनको लेकर आप गारे सौर में 3 दिन और 3 रात का क़याम फरमाते हैं। और फिर एक दलील है, रहनुमा है, गाइड है, उसके ज़रिए आप आम मदीना के रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते से मदीना का रुख करते हैं और मदीना में जब आप पहुंचते हैं तो आप का बेपनाह इस्तकबाल होता है। लेकिन दरमियान में भी जिस इलाके से गुजरते हैं उस इलाके और उन लोगों के लिए आप बाइसे रहमत बनते चले जाते हैं। उम्मे माबद का वाक़या देखें, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून के घर में जो मुख्तसर क़याम फरमाया तो आपका क़याम उस घर के लिए बाइसे रहमत बना। दूध की फरावानी उसके घर में हो गई। वो याद कर कर के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने खामद को इत्तला देती है। किस कदर खुशबख्त, किस कदर अजीम इंसान गुजरा है। जब मदीना में पहुंचते हैं तो लोग बाहर निकले हुए हैं खुश आमदेद कहने के लिए। ये फ़र्क है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी जमात के साथ जब पहुंचते हैं, अब उस वक्त जो अथॉरिटी है उस शहर की, उस पर बोझ नहीं बनते। सहाबा किराम जो मकामी थे, जो इस्लाम में आ चुके थे, अगरचे उन्होंने दरिया दिली का मुजाहरा किया, अपनी वसातों का मुजाहरा किया, उनको गले लगाया, उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोले, अपने
खुराक और तिजारत और अपनी रिसोर्सेज उनके लिए आम कर दी। यहाँ तक भी ऑफर दी गई कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ, एक के साथ आप निकाह कर लें, मेरा आधा सामान आपका आधा मेरा। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट ये किया सबसे पहले कि जो मकामी मुआविनीन हैं, अंसार हैं, उनको मुहाजिरीन के साथ मिला दिया एक एक करके। ये मुहाजिर है, ये इस अंसारी का भाई बन गया, ब्रदरहुड, अखुवा। और ये जो भाईचारगी का आपने तरीका अपनाया, ये ऐसा यूनिक तरीका है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो हुआ है, हो रहा है कि एक जम्मे गफीर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चला गया और वहाँ जाकर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मकामी लोगों से, हुकूमतों से मदद ले रहा है, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है। मगर यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक मुहाजिर को दूसरे अंसारी भाई के साथ जोड़ दिया कि जैसे वो उसके ख़ानदान का फ़र्द हो। अब इस अंदाज से आपने मुआख़ात का सिलसिला शुरू किया, भाईचारगी का सिलसिला शुरू किया कि किसी पर ज़्यादा या कम बोझ ना हो, बराबरी के साथ हो। फिर हर एक ने अपनी बिसात के मुताबिक अपने इस भाई की खिदमत की, और इन भाइयों ने भी कहा कि हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम आप पर मुश्किलात नहीं डालना चाहते, बल्कि आप हमें तिजारत का, काम का राह दिखाएं। हम आपको काम करके और कारोबार करके दिखाएंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे, कहते हैं मैं मट्टी ले के बाज़ार में जाता, अल्लाह मुझे सोना दे देता। यानी मैं कोई आम सी चीज़, कम कीमत चीज़ भी लेके जाता तो मुझे अल्लाह उसके अंदर इतना नफ़ा रख देता कि मुझे अल्लाह ताला उसके अंदर बरकतें ही बरकतें दे देता। तो सबसे पहली चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के मौके पर इस मुआशरे पर पड़ने वाले मनफी असरात को काउंटर करने के लिए मुआख़ात का सिलसिला आपने शुरू किया। और दूसरे नंबर पर आपने ये किया कि जहां पे पहुंचे हैं वहां के कल्चर, वहां की तहजीब, वहां के हालात को समझते हुए उनकी अच्छी चीज़ों को आपने कबूल किया और उनको वो वैल्यूज़ दी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल के ज़रिए इस उम्मत को अता की थी। जो दूसरा माना आप यूँ समझ लीजिएगा, इंटेग्रेशन, के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने मकामी लोगों के अंदर घुल कर ऐसे घुले मिले, मज़हब की तालीमात एक, प्रैक्टिसेस एक, शादी बियाह के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ गए। मुहाजिर और अंसार का फ़र्क ताल्लुकात में, मामलात में नहीं रहा, बल्कि बाहम शीर व शकर हो गए। जो इंटेग्रेशन जिसके फुकदान की वजह से आज बहुत सारे इलाकों के अंदर साल हा साल गुजरने के बावजूद भी एक तफरीक और तकसीम बाकी रहती है, उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनपने नहीं दिया कि नहीं दोनों एक हो जाओ। तो इंसानियत का सबक पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मिला, और इंसानी वैल्यूज़, उस बुनियाद पर किसी कौम से ताल्लुक़ कायम करना और उससे फ़ायदा उठाना और उसको फ़ायदा पहुँचाना, ये बुनियाद थी। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने बड़े जम्मे गफ़ीर को दूसरी सोसाइटी में बतौर बोझ के नहीं बल्कि तकसीम कर दिया, और फिर अगले स्टेज पर इंटेग्रेट कराया। और फिर उससे अगला मरहला आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का, और वो था कि जो दीगर अक़वाम हैं, जो दीगर
لوگ ہیں جن کے ساتھ مذہبی رشتہ نہیں ہے، جن کے ساتھ کلچر کا فرق ہے، تہذیب کا فرق ہے، ان کو بھی ایک حد تک قریب کیا جائے اور قریب ہو کے ایک شہر کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس لڑی کے اندر ان کو بھی پرویا جائے اور یہ باور کرایا جائے تم ہم سے الگ نہیں ہو، ہم تم سے الگ نہیں ہیں، اس معنی میں کہ یہ شہر ہم دونوں کا مشترکہ ہے، ہم سب کا مشترک ہے، لہٰذا اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کی خاطر ہمیں ساتھ بیٹھنا بھی ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی رکھنے ہوں گے، تعلقات بھی رکھنے ہوں گے، کاروبار بھی کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے گھروں کی حفاظت بھی کرنا ہوگی اور شہر کی بھی حفاظت کرنا ہوگی، جس کو میثاق مدینہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ تو گویا جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور جہاں پہ ایک ماحول ہے تو جو جس کلچر اور مذہب پر قائم ہے اس کو اس مذہب کے ساتھ قبول کر لو۔ یہ بھی سبق ملا ہے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سفر ہجرت سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ پالیسی، حضور علیہ السلام کا یہ انداز ہجرت کا آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ پھر یہی لوگ تھے مقامی۔ آج تک آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ باہر کا آدمی جائے اور جا کر وہاں ان پر حاکم بن جائے۔ یہ تو ہوا طاقت کے زور پر دوسری قوموں کو فتح کیا گیا، وہاں جا کے حاکم بن گئے۔ یہاں طاقت کی زور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو زیر نہیں کیا، مدینہ والوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور اپنی باہوں کو کھولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وین کردار اور سوچ کو قبول کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ دوسرے شہر کے، لیکن اللہ کے پیغمبر آپ اس لائق ہیں اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ہماری قیادت فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان مدینہ کے اہل ایمان کی قیادت فرمائی بلکہ تمام شہر کی تمام کمیونٹیز اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کی آپ نے قیادت فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا انٹر فیتھ اور انٹر کلچرل ہارمنی کا ایک درس دیا ہجرت کے بعد، اور ہجرت نے یہ بتایا کہ ہجرت کے بعد کیا ذمہ داری ایک مہاجر پر ہوتی ہے، وہ کس انداز سے اپنے آپ کو منواتا ہے تاکہ جہاں پہ ہجرت کر کے پہنچا ہے کوئی آدمی وہ یہ محسوس کرے کہ یہ مجھ پر بوجھ نہیں، میرے لیے باعث رحمت ہے، میرے لیے باعث عزت ہے، میرے لیے باعث برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان اصحاب کے اس رویے اور اس کوشش اور اس محنت کے نتیجے میں انصار نے اس حد تک اس کو قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود ضرورت مند ہوتے لیکن اپنی ضرورت کو ایک طرف کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے آتے۔ یہ درس ملا ہے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سفر ہجرت سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ذریعہ بنی ترقی کا، فتوحات کا، اللہ کے احکامات کے نزول کا، قرآن کریم کی تکمیل کا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 سال ہجرت کے بعد اپنے دور اقتدار میں حضور اب اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم کے لیے جس لمحے کو انتخاب کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا لمحہ، نہ میلاد سے، نہ بعثت سے، نہ مکہ کی فتح سے، بلکہ نہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی سے، بلکہ فتوحات اور کامیابیاں اور کامرانیاں اگر ملی ہیں تو وہ ہجرت کے لمحے سے ملی ہیں۔
नमाज के अलावा बाकी कोई इबादत फ़र्ज थी नहीं, वो हिजरत के बाद हुई। रोज़े को देखें, हिजरत के बाद, ज़कात हिजरत के बाद, हज हिजरत के बाद, हज तो आखिर में फ़र्ज हुआ सन 9 हिजरी में। ज़कात है, सदक़ात हैं और जिहाद है, दीगर अहकामात सब के सब उतरे हैं हिजरत के बाद। तो हिजरत ने रूहानियत में भी एक किरदार अदा किया, हिजरत के मरहले के बाद रूहानियत के मैदान में भी, और कुरान करीम की तकमील में भी, और अल्लाह के हुक्म के तनफीज़ में भी, नाफिज करने में भी हिजरत का एक किरदार था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लम्हे को इस्लामी साल की इब्तिदा के लिए मुकर्रर फरमाया, चूँकि हिजरत ने ज़िंदगियाँ बदली, हिजरत ने मुसलमानों की शान को बदला, हिजरत ने मुसलमानों को अज़मत और तरक्की के आला मनाजिल तक पहुँचाया। हिजरत की बरकत से मक्का फतह हुआ, हिजरत की फतह से दुश्मन ने मुसलमानों को बतौर क़ुव्वत तस्लीम किया, सुलह हुदैबिया हुआ। हिजरत की मदद से अल्लाह ने एक इज्तिमाई मुआशरे के अंदर इस्लाम को नाफिज करने और इस्लामी तालीमात को नाफिज करने का एक मौका फराहम किया। इसलिए हिजरत को याद करना और हिजरत की जो तालीमात हैं और हिजरत से जो सबक हैं उसको बाकी रखना, यह हमारे मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। तालीम का सिलसिला ये भी हिजरत के बाद, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें दुश्मन से भी तालीम हासिल करना पड़े तो उससे भी तालीम हासिल करो। बदर के कैदियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तालीम हासिल करने का हुक्म दिया और उनकी रिहाई के लिए शर्त लगाई कि तुम हमारे लोगों को तालीम दे दो और हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना माफ़ कर देंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे, पहले तालीम दे जाओ। तो गोया मुसलमानों को कहा गया तुम अपने मुखालिफों से भी तालीम हासिल कर सकते हो। तो आज ये हमारे लिए भी सबक है जो दियार गैर के अंदर रहते हैं कि अगर उन बच्चों का, हमारे बच्चों का उस्ताद कोई गैर मुस्लिम है तो उस गैर मुस्लिम से तालीम हासिल करना ममनू नहीं है, बल्कि अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, हिकमत तो मोमिन का गुमशुदा मता है, जहाँ से मिले उसका हक बनता है कि उसको वो ले ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको हिजरत से सबक लेने और हिजरत को समझने और हिजरत के अंदर पिन्हा जो दुरूस हैं, जो इबरत है, उसको इख्तियार करने और जो मौजूदा तारिकीन वतन के मसाइल हैं उनको हिजरत की रोशनी में हल करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ हम देखते हैं जितना भी कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, मुहाजिरीन या तारिकीन वतन की वजह से कुछ मसाइल का शिकार है और ख़ुद तारिकीन वतन के लिए भी मसाइल हैं। हांगकांग भी उनमें से एक है। यहाँ पे भी हमारे कई इस्लामी ममालिक के लोग बतौर असाइलम सीकर यहाँ पे आए हुए हैं और कईयों के केस बरस गुजर गए, अभी तक फाइनल नहीं हो रहे, अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि ये वापस जाने के लायक हैं या किसी और मुल्क के सफर करने के लायक हैं। यहाँ पे उनको इतना दे दिया जाता है कि जिससे उनकी जिस्म और जान का रिश्ता बाकी रहे, बहुत मुख्तसर, ताकि वो एक शेल्टर ले सकें और खाना पीना वो कर सकें। काम की उनको इजाज़त नहीं होती, नौकरी करने की उनको इजाज़त नहीं है, कंपनी खोलने की, कोई कारोबार करने की उनको इजाज़त नहीं है। तो ये तो हांगकांग है। इसी तरह यूरोप और बाकी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल हैं। कहीं पे लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, मुजाहरे होते हैं, और बाज़ मुल्कों में वो पार्टियां इख्तिदार में आईं जिन्होंने अपनी कौम को ये बतलाया कि हम इन मुहाजिरीन या तारिकीन वतन को निकाल देंगे, उनको इस बुनियाद के ऊपर वोट मिले, और गोया ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया और लोगों ने एक बोझ भी महसूस किया कि ये लोग आए हैं, न चाहते हुए भी ये घुस आए हैं। अब इंसानी वैल्यूज़ हैं, किसी हद तक उन्होंने कबूल किया और मुआवनत भी कर रहे हैं NGOs या हुकूमत। लेकिन बहरहाल
ایک برڈن کی حیثیت ہر ایک ملک محسوس کرتا ہے جہاں جہاں پہ بھی تارکین وطن پہنچے ہیں. لہٰذا ان اپنے مسلمان تارکین وطن سے یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ وہ بوجھ بننے کی بجائے اپنے آپ کو ان کے لیے باعث سکون ثابت کریں کہ وہ امن اور اطمینان ان کے ذریعے ان کو مل سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ایک امن فراہم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.